प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे नए चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। सो दिस इज our lecture 1 of inverse trigonometric functions, and during this lecture 1 we shall be covering up the following content. First we shall be looking at introduction of ITFs. Then we shall be having a look at 6 general ITFs, because we have 6 general trigonometric functions. So corresponding to each of trigonometric function will be having its inverse trigonometric functions. So we have total 6 basic, or we can say general ITFs. So we shall study them. In study of 6 basic ITFs, we have been looking at their graphs, domain and range. ऑलराइट बेटा, सो हमें पहले लेक्चर में ये सब कवर करना है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस, let me clear this, that we have a sort of prerequisite here. So before you start ITF, ensure that you understand chapter functions fully, because you can understand inverse trigonometric functions only if you have studied functions well, because here we shall be using many techniques and tools of the functions chapter. So functions chapter में हमने बहुत सारी ऐसी बातें पढ़ी हैं which I will be directly using here. So we have 6 basic trigonometric functions. All right, what are they? We are very familiar with them. One is sin x, one is cos x, one is tan x, one is cosec x, one is sec x, and one is cot x. Corresponding to each of these 6 basic trigonometric functions, we have their corresponding inverse trigonometric functions. So जैसे कि हम इसकी बात कर लेते हैं, we have this sin x function, so we must be having inverse of sin x. So let me start with inverse of sin x. So now here we have function y equal to sin x. Now you must be curious about what is its domain and its codomain. So जब भी फंक्शन आपको इस तरह से लिखा जाता है तो आप कहते हैं कि फंक्शन अगर आपको रियल वैल्यू देता है, सो एनी एक्स यू कैन पुट इट हेयर. So using that definition we get domain of sin x as r, and codomain, if it is not mentioned, we take it r. What about range of y equal to sin x? So range भी हमें पता है क्या होती है. रेंज होती है सर y बिलोंग्स टू -1 to 1, सॉरी, या फिर हम उसे sin x is sandwich in between -1 and 1 ऐसा लिखते हैं. Do you remember the graph of sin x? Yes sir, we do. So sin x के ग्राफ को बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. So आपने तुरंत sin x के ग्राफ को बना दिया, बहुत बढ़िया. इस तरह से it will go towards infinite and minus infinite. So where does this y equal to fx, this is y equal to sin x, intersects with the x-axis. So it intersects at x-axis at pi, 2 pi, 3 pi, and this is minus pi, this is minus 2 pi, and so on. This is our origin. So you will say that, sir, how can we define the inverse of sin x while this function is many one, as well as this is not onto also? So we know that
sin x function, this is many one, and this is into. Do you remember these words? Yes. Many one क्या होता है? If we draw a line parallel to x-axis and we see there can be multiple interactions with the line and the graph. So such functions are many one functions. And into हमने क्यों कहा? Because our codomain is R and range is -1 to 1, which is not equal to codomain. Hence it is not onto, it is into function. So if a function is neither 1 1 nor onto, how can be it invertible functions? Because now let me remind you, invertible functions. क्या होते हैं invertible functions? The only test we conduct for an invertible function is it must be both 1 1 and onto. All right, one को हम what do we say in other words? Injective. Remember, injective, and onto is called surjective. All right, beta. If a function is injective as well as surjective, we call it bijective or invertible functions. That means inverse of that function will definitely exist. But here this function, this sin x, is neither 1 1 nor onto. So how is its inverse existing? That is real question. How can we define an inverse function of sin x while it is not invertible? पहला जो कंसर्न है आपका, ये दिमाग में जो डाउट आया है वो बहुत ही सही है. तो इन ऑर्डर टू make it invertible, in order to make inverse of sin x exist, what do? We redefine this function actually. So we redefine this sin x function in such a way that it becomes invertible. That means it will become 1 1 as well as it will become onto also. So let me redefine y equal to sin x again. So हमने बात की है यहाँ पे कि y इक्वल टू साइन एक्स को अगर हम इस फंक्शन को फिर से रीडिफाइन करना चाहते हैं और इस तरह से रीडिफाइन करना चाहते हैं कि ये आपका 1 1 और 1 2 बना रहे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं एक्चुअली? देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो फंक्शन है आपके पास ओरिजिन से चल के ऊपर जाता है इस तरह से और फिर नीचे की तरफ आता है. ऑलराइट, ऐसे चलता है ये. दिस इज और साइन एक्स ग्राफ. अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं ओरिजिन से यहाँ पे चलूँ तो ओरिजिन से यहाँ तक आप चलते हैं तो ये अभी भी 1 1 है यहाँ तक. लेकिन जैसे ही ये व्हाट इज दिस पॉइंट, ये आपका पीक पॉइंट लेगा π/2, 1 पे. आफ्टरवर्ड इट विल स्टार्ट, यू नो, द y कोऑर्डिनेट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग ऑन इट एंड इट विल बिकम मैनी वन, क्योंकि पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसे मल्टीपल टाइम्स कट कर देगी. तो हमने इतना सा ब्रांच यहाँ पे लिया और सिमिलरली इतना सा ब्रांच. नाउ सिंस वी हैव टेकन दीज टू ब्रांचेस, अब इस ब्रांचेस में आप ये देखिए कि इज़ दिस 1 1. मान लीजिए कि ग्राफ आपका यही है, बस इतना ही है. सो इज़ दिस 1 1. सो व्हाट एम आई आस्किंग हियर, इफ़ एफ एक्स इज़ डिफाइंड फ्रॉम, डोमेन क्या है, व्हाट इज़ द लीस्ट एक्स कोऑर्डिनेट, -π/2 to π/2, and what is the range, -1 to 1, -1 to 1. if this is our function fx sin x, so ये हमने पता किया कि ये आपका 1 1 फंक्शन है एज वेल एज दिस इज ऑन टू ऑल्सो, क्योंकि जो आपकी रेंज है -1 to 1 वही आपका कोडोमेन है. सो नाउ वी कैन डिफाइन इनवर्स ऑफ दिस साइन एक्स फंक्शन. सो इन्वर्स डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे इन्वर्स फंक्शंस में जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है उसका इस्तेमाल करते हैं बेटा. तो अभी हम क्या बनाना जा रहे हैं, इन्वर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ. सो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इन्वर्स ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स. ध्यान देंगे आप कि ये जो फंक्शन है आप कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर रहे हैं,
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू टू माइनस वन टू वन। यहाँ से यहाँ तक आपने इस फंक्शन को डिफाइन किया है। तो अब आप यहाँ पे क्या कहते हैं कि इनवर्स ऑफ साइन एक्स डिनोटेड बाय साइन इनवर्स एक्स, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं या सी साइन एक्स। ठीक है, तो ये वन बाई साइन एक्स मत समझना, ये इस मेरे लिए नोटेशन माइनस वन पावर में नहीं है, इससे नोटेशन इनवर्स का नोटेशन है ये। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये जो साइन एक्स फंक्शन था उसका इन्वर्स हो गया साइन इनवर्स एक्स। नाउ जो हमारा ये फंक्शन है, लेट मी कॉल इट जी एक्स, this is sin inverse x, where will it be defined from? Actually if fx is defined from a to b, तो उसका इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है, b to a। सो यहाँ पे आपके पास में g का जो इन्वर्स g जो फंक्शन है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस वन टू वन टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ऑलराइट, तो ये जी की डेफिनेशन हो गई हमारे पास में। नाउ वी वांट टू लुक एट द ग्राफ ऑफ जी, कि जी का ग्राफ आपका कैसे बनता है। तो हम यहाँ पे साइन एक्स के साथ ही उसके इन्वर्स दैट इज साइन इन्वर्स एक्स, उन दोनों का ग्राफ को हम यहाँ पे एक साथ बनाना चाहते हैं। नाउ इनके ग्राफ को बनाने के लिए बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को याद करेंगे जिसमें आपने कहा था कि ग्राफ जो होता है फंक्शन का और उसके इन्वर्स फंक्शन का, दे आर सिमेट्रिक अबाउट ईच अदर, दे आर सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स लाइन। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, इसका हम ग्राफ देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि आपको क्या करना है अभी, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x, y इक्वल टू साइन x एंड y इक्वल टू tan x फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई टू। आपको ये करना है। और बेटा ये तीनों ग्राफ वीडियो पॉज करके आप साइमल्टेनियसली बनाएंगे, मतलब एक ही जगह में तीनों ग्राफ को बनाना है। तो देखते हैं कि किस किस को याद है। ये हमने बनाया था ग्राफ वाइल वी वर स्टडिंग दिस फंक्शंस चैप्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास में ग्राफ होते हैं। एक्चुअली ये होता है आपके पास में साइन एक्स, ये आपके पास tan x होता है, और ये आपके पास में y इक्वल टू साइन एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन जो कि एकदम क्वाड्रेंट 1 एंड 3 को बाइसेक्ट करती हुई निकलती है। दिस इज y इक्वल टू एक्स लाइन, दिस इज साइन एक्स एंड दैट इज tan x। वैसे tan x का यहाँ कोई इस्तेमाल है नहीं, लेकिन वो याद करने के पर्पज़ से हमने इसको, हमने तीनों ग्राफ ये एक साथ हमने यहाँ पे बनाए थे while we were having बेसिक फंक्शंस ग्राफ। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन एक्स और y इक्वल टू एक्स, उनके ग्राफ को हम यहाँ देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में व्हाट डू वी सी, द ग्राफ ऑफ साइन एक्स इज ऑलवेज बिलो द लाइन ऑफ y इक्वल टू एक्स। हमने इसको नेगेटिव में बना दिया, ऑल्दो हमने यहाँ से 0 से पावर 2 में ही पूछा था, लेकिन नेगेटिव में भी यू कैन हैव द आइडिया कि पॉजिटिव एंड में क्या हो रहा है, साइन एक्स y इक्वल टू एक्स के नीचे, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स ऊपर रहेगा, y इक्वल टू एक्स नीचे रहेगा। ऑलराइट, तो अभी हम ये देखना चाहते हैं कि अगर मैं ग्राफ की इमेज लेना चाहूँ, इफ़ आई वांट टू टेक द इमेज ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स लाइन, सो आई मस्ट गेट इनवर्स फंक्शन दैट इज साइन इनवर्स x। तो लेट अस टेक इमेज ऑफ साइन एक्स with respect to y equal to x. So now we are building graph of sin inverse x by taking image of sin x in y equal to x line. तो ये हमारे पास में ग्राफ है, दिस इज
y इक्वल टू साइन एक्स, दिस इज x, और ये जो y इक्वल टू x है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में वी वांट टू टेक द इमेज ऑफ दिस y इक्वल टू साइन एक्स. So this y equal to x line now be working as a mirror. all right. So इसकी इमेज, जैसे ये पॉइंट है y इक्वल टू एक्स में अल्फा बीटा की इमेज क्या होती है, बीटा अल्फा. सो इस पॉइंट की इमेज कहीं यहाँ पर आ जाएगी. ऑल राइट, इस वाले पॉइंट की इमेज कहीं यहाँ पे आ जाएगी. एंड इफ़ वील ऐड देम ऑल विल बी फाइंडिंग, देखिए इसकी इमेज ऐसी ही होगी कुछ, ठीक है ना. तो ये आपके पास में जो साइन एक्स का फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है उसका ग्राफ बन गया ये इमेज, और जो ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स का पार्ट है इसका इमेज विल लुक लाइक दिस. ऑलराइट, इफ दिस पॉइंट इज पाई बाई टू कॉमा वन, व्हाट विल बी इट्स इमेज, वन कॉमा पाई बाई टू, और इसका सॉरी दिस इज माइनस पाई बाई टू माइनस वन, तो इसकी इमेज क्या होगी, माइनस वन माइनस पाई बाई टू. ऑलराइट, सो ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स. अब आप देखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट है वन, और लीस्ट एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस वन. व्हाट आर द रेंज, सो रेंज आपकी है माइनस पाई बाई टू, और हाईएस्ट वैल्यू आपको मिल रही है पाई बाई टू, विच वी नो कि आपका साइन एक्स डिफाइन किया था हमने माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, और रेंज क्या थी साइन एक्स की, माइनस वन टू वन. तो इन्वर्स के लिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो ये हमारे पास में इन्वर्स का ग्राफ आ गया. सबसे पहले हम यहाँ पे दो तीन बातें लिखेंगे कि अगर मेरे पास में इन्वर्स फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूँ माइनस वन टू वन टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, तो एफ एक्स क्या है आपके पास में, इन्वर्स फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी इन्वर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स. And what graph of sin inverse x did we just get, we got its graph as, ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की ब्रांच है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे आपका ग्राफ ख़त्म हो जाता है. तो ये आपके पास में कौन सा पॉइंट है, ये वन है, और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस वन है. दिस इज वाई एक्सिस, आई एक्स एक्सिस, दिस पॉइंट इज वन कॉमा पाई बाई टू, दिस इज माइनस वन कॉमा माइनस पाई बाई टू. यह आपका ग्राफ हो गया बेटा साइन इनवर्स एक्स का. तो इसका डोमेन क्या है, सो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डोमेन की. सो डोमेन यू वुड से कि एक्स क्या है, माइनस वन टू वन, दैट वुड यू वुड से mod x इज लेस देन इक्वल टू वन, और व्हाट रेंज डिड वी जस्ट गेट, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू. ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, साइन इनवर्स x के बारे में बात कर रहे हैं. So this is the graph of sin inverse x. Similarly, we shall be finding the graph of other trigonometric functions. Now let us understand the inverse of cos x. So this is cos x. So again we have the same problem as we had in sin x graph, because this is neither 1 1 or nor on 2. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा cos x को. ऑलराइट, सो आप ये देख रहे हैं व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज 0 वन, एंड दिस इज पाई बाई टू कोमा जीरो, दिस इज पाई कोमा माइनस वन, एंड सो ऑन. तो अब आप देख रहे हैं बेटा इस साइन एक्स, इस कॉस एक्स के ग्राफ में अगर मैं यहाँ पे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूँ फ्रॉम जीरो टू पाई. ऑलराइट, तो अगर जीरो टू पाई अगर आप डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो यू विल सी दैट इतना सा जो ग्राफ है आपका, you will take it as cos x न्यू डेफिनेशन. ये आपका cos x का नया ग्राफ हो गया, और इस cos x के ग्राफ को आपको यहाँ पे लिख देना है. बाकी के cos x का ग्राफ आपके लिए यूजलेस है. इन ऑर्डर टू डिफाइन द इन्वर्स ऑफ cos, हम cos x के कितने पार्ट को ले रहे हैं यहाँ पे, कि जो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है उसमें f is defined from 0 to pi, 0 to
पाई, और व्हाट इज़ द रेंज, ये हमें मैक्सिमम 1 मिल रहा है, मिनिमम -1 है। सो रेंज तो आपके साइन एक्स जैसी है, इसकी भी -1 to 1। तो हमने यहाँ पे ये कॉस एक्स के ग्राफ को ले लिया। अब हमें गिवन द cos x ग्राफ वी वांट टू फाइंड द इनवर्स ग्राफ, cos x के इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हमें देखना है यहाँ पे। ऑल राइट, सो लेट मी ड्रॉ cos x एंड y इक्वल टू एक्स टुगेदर। तो y इक्वल टू एक्स में हम ये जो cos x का पार्ट है उसकी इमेज लेके वी शैल बी गेटिंग द इनवर्स फंक्शन ऑफ cos x।